اتفاق پر یقین نہیں رکھتی، میں خدا کی آگاہی پر یقین رکھتی ہوں۔ میں ایک کٹر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی اور خدا کا میرے لیے ایک بہت ہی حیرت انگیز منصوبہ تھا، لیکن میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ یسوع نے اپنا آپ مجھ پر ظاہر کیا اور مجھے نئی زندگی دی، اور اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ یقین کریں تو خدا آپ کو آج نئی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ یسوع مسیح حقیقت ہے، وہ زندگی بدل دیتا ہے، وہ قسمت بدل دیتا ہے، اور وہ قوموں کو بدل دیتا ہے، اور وہ قومی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ میرے عزیزو ہیلو، مسیح یسوع میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام عشق ہے اور میں پروگرام نئی زندگی کو گلے لگانا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ نئی زندگی کو گلے لگانا، شاید آج آپ کو نئی زندگی کی ضرورت ہو۔ آج آپ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں چاہتے ہوں اور آپ اس تبدیلیوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور مانگ رہے ہوں گے۔ آپ کا دل ان کی وجہ سے بوجھل ہوگا، اور میں بھی ان حالات میں سے گزرتی ہوں، اور وقتاً فوقتاً ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ سب یسوع کی قوت کے بارے میں ہے، یسوع مسیح کی تبدیل کر دینے والی قوت۔ آج میں آپ کے ساتھ متوجہ ہونے اور دیکھنے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ کبھی کبھار ہم ان دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں، متوجہ ہونے اور دیکھنے کو۔ متوجہ تو ہوتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سچائی سے نابینے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، ارے واہ، کیسے ہو گیا کہ میں نے اسے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ صحیح، شاید کبھی کبھار کئی سال ہم متوجہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کو دیکھتے نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن میں اپنے باس کے آفس میں تھی۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی اور انہوں نے اس وقت میرے ایمان کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور میں نے انہیں جواب دیا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، عشق، کیا یہ خدا ہے؟ کیا آپ سوچتی ہیں کہ یہ خدا آپ کو بتا رہا ہے؟ کیا آپ سوچتی ہیں کہ یہ خدا ہے کہ آدمی عورت کو پیٹے؟ کیا آپ سوچتی ہیں یہ خدا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، عشق، تم ایک بہت ہی کھوئی ہوئی عورت ہو۔ اور اس دن مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ میں اتنے غصے میں آ گئی کہ میں گھر چلی گئی، بلکہ میں نے سوچا کہ میں اپنی نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ انہوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک کھوئی ہوئی عورت ہوں۔ اور پھر میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور ایک کھوئی ہوئی عورت کو پایا، اور اس دن میں روئی، بہت زیادہ روئی۔ ہمیں متوجہ ہونا ہے اور دیکھنا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ مسیح سے پہلے پردہ تھا، نقاب تھا ہماری آنکھوں کے سامنے، اور جس لمحے ہم سچے خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں لیتے ہیں تو خدا اس نقاب کو ہٹا دیتا ہے، تو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم گواہی شیئر کرنا چاہوں گی جس نے گزرے سالوں میں میرے دل کو چھوا، اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ گواہی کس سے متعلق ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ اگر خدا اپنی بھلائی سے برف کا طوفان نہ بھیجتا تو میں اس وقت تک تاریکی اور ناامیدی میں ہوتی۔ ایک اتوار کی صبح جب میں ایک مخصوص جگہ پر عبادت کے لیے جا رہا تھا، میں اس کے ساتھ والی گلی میں مڑ گیا۔ یہ ایک قدیم میتھوڈسٹ چرچ تھا۔ اس چرچ میں شاید درجن بھر یا 15 لوگ موجود ہوں گے۔ میں نے اس قدیم میتھوڈسٹ چرچ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ کس طرح بلند آواز میں گاتے تھے۔ وہ لوگوں کے سر میں درد کروا دیتے، لیکن میرے لیے یہ بے معنی تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں کس طرح بچ سکتا ہوں۔ لیکن اس صبح پادری وہاں نہ پہنچا، برف باری کی وجہ سے۔ میں نے فرض کیا۔ بالآخر ایک بہت ہی دبلا پتلا آدمی جو شاید ایک موچی، ایک درزی یا اسی طرح کا کوئی لگ رہا تھا، کلام دینے کے لیے ممبر پر چڑھ گیا۔ اب بہتر ہے کہ مبلغ بھی ہدایات سے بھرپور ہوتے ہیں، لیکن یہ شخص واقعی احمق نظر آ رہا تھا۔ وہ مجبور تھا کہ وہ اپنے اس حوالے پر قائم رہتا، اس تمام وجہ سے کہ اس کے پاس بولنے کو بہت کم تھا، اور وہ
यसाया 45 बाब उसकी 22 आयत थी। ए इंतहाई जमीन के रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो और नजात पाओ। मेरी तरफ मुतवज्जो हो। आप देखने के लिए जरा भी तकलीफ नहीं होती मेरी तरह, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सोचता हूं उस आयत में मेरे लिए उम्मीद की एक झलक थी। वाइस ने आयत पढ़ना शुरू की। ये एक बहुत सादा आयत थी। वाकई इसमें लिखा था मुतवज्जो हो। देखना तो मुश्किल काम नहीं है। ये आपका पांव या उंगली उठाना नहीं, बल्कि सिर्फ देखना है। खैर, आदमी को जरूरत नहीं कि वो कॉलेज जाए कि देखे। आप शायद बेहद बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। एक शख्स को देखने के लिए एक साल में हजारों या लाखों रुपए की जरूरत नहीं। मुतवज्जो होने के लिए कोई भी मुतवज्जो हो सकता है, यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी। लेकिन फिर ये आयत कहती है मेरी तरफ मुतवज्जो हो। उसने अपने अंदाज से कहा। आप में से बहुत अपने आप पर तवज्जो करते हैं, लेकिन वहां पर मुतवज्जो होने का कोई फायदा नहीं। आप अपने आप में कुछ आराम नहीं हासिल कर पाएंगे। कुछ कहेंगे और खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, बाप की तरफ नहीं। यहां मुतवज्जो हो, वहां हो, उसकी तरफ मुतवज्जो हो। यीशु मसीह ने कहा मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। फिर उस भले शख्स ने उस आयत को कुछ इस तरह बयान किया, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मेरा पसीना खून के कतरे बनकर टपक रहा है। मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मैं सलीब पर लटक रहा हूँ। मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मैं मर गया और दफन किया गया। मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मैं दोबारा जी उठा। मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मैं आसमान पर भेजा गया और बाप के दाहिने हाथ की तरफ बैठा हूँ। ए गुनहगार इंसान, मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मेरी तरफ मुतवज्जो हो। जब उसने 10 मिनट या उससे ज्यादा वक्त गुजार लिया, वो अपने पैगाम के इख्तिताम पर था। फिर उसने गैलरी के अंदर मुझे देखा और मैं बिला खौफ कहूंगी उस जगह बहुत कम लोगों में वो मुझे अजनबी के तौर पर जानता था। अपनी निगाहें मुझ पर जमाए हुए जैसे वो मेरे दिल का हाल जानता हो, उसने कहा, ए जवान, तुम सख्त गमज़दा नजर आते हो। खैर ऐसा था, लेकिन इससे पहले कभी भी ऐसा ऐलान नहीं किया गया था। ताहम ये मेरे मुंह पर एक अच्छा घूंसा अच्छा तमांचा था और उसने ये जारी रखा, और तुम हमेशा गमज़दा रहोगे, जिंदगी में गमज़दा, मौत में गमज़दा। अगर तुम इस कलाम को नहीं मानोगे, लेकिन तुम मानोगे और इस लम्हे तुम बच जाओगे। फिर वो अपने हाथों को उठाए इस तरह चिल्ला रहा था जिस तरह सिर्फ एक कदीम मेथोडिस्ट ही कर सकता है। ए जवान, यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जो हो, मुतवज्जो हो, मुतवज्जो हो, मुतवज्जो हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, लेकिन मुतवज्जो होना और जिंदा रहना है। मैंने एक बार में निजात का रास्ता देख लिया। मुझे नहीं पता कि उसने और क्या कुछ कहा, और उस लम्हे मैंने खुदावंद यीशु को कबूल किया और मैंने अपने दिल की गहराई से खुदावंद की हम्द के गीत गाए। ये गवाही चार्ल्स स्पर्जन के मुतल्लिक है। वो वाइजीन का शहजादा कहलाता था। वो 9 उम्र जवान था जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया, और अपनी निजात के कुछ सालों बाद उसने आम लोगों और हजूम में खुदा का कलाम सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक दिन वो मुतवज्जो हुआ और देखा। यही है जो कलाम कहता है। यूहन्ना 9 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, यीशु अंधे को शिफा दे रहा था और फरीसी उससे सवालात पूछ रहे थे। उस आदमी से पूछ रहे थे जिसने बिनाई पाई थी, किसने तुम्हें शिफा दी? यही कुछ होता है जब खुदा पर्दा हटाता है, जब आप शिफा पाते हैं, जब आप शिफा को कबूल करते हैं, आपके लिए मौजज़ा होता है। लोग आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि ये किसने किया, ये कैसे हुआ, और कुछ तो हमेशा हमेशा यही उम्मीद रखते हैं। हैरान मत हो, लेकिन उनमें से कुछ शक भी करेंगे।
मरतबा मैंने एक वाइज को ये कहते सुना कि मौजज़ा मौजज़ा ही होता है, कि हम इसे बयान नहीं कर सकते। अगर आप इसको बयान कर सकें तो ये मौजज़ा नहीं होगा। हो सकता है आज आपको मौजज़े की ज़रूरत हो कि ज़िंदगी में, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में, आपके जिस्म में, या आपके बच्चे बीमार हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुदा जानता है। ठीक उस वक्त जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम कि ये कब नशर होगा, खुदा वक्त जानता है। और आप इसे ऐसे ही नहीं देख रहे, ना ही इसे हादसाती तौर पर सुन रहे हैं, लेकिन ये एक इलाही मुलाकात है और खुदा बेएतमादी को ख़त्म करना चाहता है, अपनी आंखों से पर्दा हटाना चाहता है ताकि आप देख सकें और आप भी उम्मीद की उस झलक को पा सकें, चार्ल्स स्पर्जन की तरह। और आपके ईमान के साथ खुदा की कुव्वत मुंसलिक हो जाती है और वो कुव्वत आप पर ठहर जाती है और तब्दीली लाती है। मेरे अजीजों, फिर फरीसियों ने उस नाबीना आदमी से पूछा, बहुत से सवालात के बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक चीज मैं जानता हूं कि मैं नाबीना था, लेकिन अब देख सकता हूं। मैं नाबीना था, लेकिन अब देख सकता हूं। हैरान कुन करम लगे कितना मधुर, जिसने बचा लिया मुझ जैसी को। और कभी मैं नाबीना थी, अब मैं देख सकती हूँ। मैं इतना ही जानती हूँ, मुझे याद है मसीह में आने के बाद मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त मुझ पर बरहम थे, इंतहाई शक्की और मुझे मारने के दर पर थे। और मैं कलाम के बारे में नहीं जानती थी, मैं खुदा के कहे हुए के बारे में नहीं जानती थी, मैं इल्म कलाम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैं कहीं भी बाइबल की तालीम लेने नहीं जाती थी। उस वक्त मैं बिल्कुल नई ईमानदार थी। चुनांचे जब वो मुझसे सवालात पूछते थे, तुम किस तरह मसीह को खुदा का बेटा कहती हो, किस तरह खुदा की शान में गुस्ताखी करती हो, किस तरह तुम इस पर यकीन रखती हो, ये हमाकत है, ये और ये। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उन्हें कैसे जवाब दूं। और मुझे याद है एक दिन उन्होंने मुझे बेहद जिद किया और मैं उस जगह पर चली गई ताकि उन्हें गवाही दूं। और मैं उस जगह से तकरीबन शिकस्त खुर्दा अंदाज में बाहर लौट आई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया, आप कहीं जाएं और खुदा की मोहब्बत से भरे हों, हौसले और उम्मीद से भरे हों, और आप चाहते हो कि किसी से बांटें? तसव्वुर करें कि आपको कैंसर था और डॉक्टरों ने आपको जिंदा रहने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था और आपको एक डॉक्टर मिल गया और उस डॉक्टर ने आपको तंदुरुस्त कर दिया। उसने आपको मखसूस इदवायात दी, उसने आपको एक मखसूस रास्ता दिखाया, खाना, खुराक, जो कुछ भी, आपने वो तरीका इस्तेमाल किया और आप तंदुरुस्त हो गए। आप कैंसर से आज़ाद हो गए। और फिर आप किसी को देखते हैं, आपको दर्द का अंदाजा है, आपको तकलीफ का अंदाजा है, आपको पता है कि आपकी भवों पर बाल ना हो, पलके ना हो, सर पर बाल ना हो। इसके बगैर कैसा महसूस होता है और नहीं जानता कि कल उसके या उसके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। लेकिन डॉक्टरों ने उस शख्स से ये कहा कि उसके पास जीने के लिए चंद माह हैं। क्या आप उस शख्स को नहीं बताएंगे कि मैं जानता हूं कि मुझे किसने शिफा दी, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी किसने तब्दील की, मैं जानता हूं मुझे किसने छुआ। किस तरह आप अपना मुंह बंद रख सकते हैं और दूसरे शख्स के साथ शेयर नहीं करते। और मैंने भी ऐसा ही महसूस किया। मैं जहन्नुम की आग से बच गई, मैंने सच्चाई को पा लिया। मैं नाबीना थी और अब देख सकती थी, और मैं जानती हूं कि मेरे दोस्त भी यीशु मसीह के बारे में जाने। लेकिन नहीं, जब मैं वहां पहुंची तो वो मुझ पर कीचड़ उछालने लगे और मुझसे ऐसी चीजें कहने लगे जिनका मैं जवाब नहीं दे सकती थी। लेकिन एक बात मैंने उनसे कही। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा, मैं निकलने ही वाली थी और मैं सब्र नहीं कर सकती थी कि मैं घर या गाड़ी तक पहुंचकर रो सकूं। लेकिन एक चीज मैंने कही, मैं नाबीना थी, अब देख सकती हूं। जब आप नाबीना होते हैं तो आप देख नहीं सकते। बहुत से लोग मशरिक़ वस्ता में मेरा प्रोग्राम देखते हैं, तुर्किश और फारसी ज़ुबान में, और वो उन्हें बहुत नागवार गुजरता है क्योंकि मैं यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना निजात दहिंदा और अपना खुदा कहती हूँ।
और मैं समझती हूँ कि किस तरह उन्हें ये नागवार गुजरता है। और ये बुरी बात नहीं है, मुझे बताने दीजिए, ये एक अच्छी बात है कि वो इससे नाराज होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम कभी मेरे लिए भी नागवार था। मैं खुश हूँ कि ये मेरे लिए नागवार था। इसकी एक वजह है कि मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे फिरके होते हैं कि वो यीशु मसीह का नाम खुदा के कलाम में से निकाल देना चाहते हैं, ताकि लोगों के लिए ज्यादा काबिल कबूल और पसंदीदा बना सके, ताकि सलीब का पैगाम किसी को नागवार ना गुजरे। नहीं मेरे अजीजों, मैं खुश हूं कि मसीह यीशु का नाम मेरे लिए एतराज था, क्योंकि एक दिन मुझे इस जुर्म का सामना करना था और मुझे फैसला करना था। मुझे कहना था कि आज ही मुझे फैसला करना है कि यीशु मसीह कौन है। और उस दिन उसने मेरी आंखें खोली और मैं देखने के काबिल हो गई कि वो कौन है, वो कौन था, और वो हमेशा यकसा ही रहेगा। यही वजह है कि वो मुझे हकीकत लगता है। मैं नाबीना थी, अब देख सकती हूँ। और हम ये बहुत सी इल्हामी किताबों और गीतों में देखते हैं, मेरे दिल की आंखों को खोल खुदावन, मेरे दिल की आंखों को खोल, मैं तुझको देखना चाहती हूँ। ये आपकी दुआ हो सकती है, मेरे दिल की आंखों को खोल खुदावन, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। शायद आप मसीह यीशु में एक ईमानदार हो, आप बहुत सालों से मसीह यीशु की पैरवी कर रहे हो, लेकिन आप कुछ बातों के लिए नाबीना हो। खुदा को पर्दों को हटाने की जरूरत है और सूरत हाल को जाहिर करने की। आप इन हालात में से कैसे और किस तरह गुजर रहे हैं? आज वो दिन है कि आप उससे पूछें, मेरे दिल की आंखों को खोल, मेरे दिल की आंखों को खोल, मैं तुझे देखना चाहता हूं। एक आदमी था जिसने फेसबुक पर मुझे लिखा और उसकी तस्वीर बहुत ही दहशतनाक थी। मैं आपको बताऊं, उसने कमांडो का लिबास पहना हुआ था। वो एक मुतस्सबी मुसलमान लगता था। उसने 2 मशीन गन्स उस तस्वीर में पकड़ी हुई थी और सर पर रुमाल बांधा हुआ था और उस रुमाल पर अल्लाहू अकबर लिखा हुआ था। और उसने मुझे ये लिखा, उसने कहा कि तुम मसीहत को फरोग दे रही हो, तुम झूठ बोलती हो, वो मुझे बता रहा था। तुम्हारा कलाम बदल चुका है, वो मुझे ये बता रहा था। और ये मेरी जिंदगी का मकसद है। उसने कहा कि तुम्हारे साथ लड़ूं और कत्ल करूं अपनी आखिरी सांस तक। उसने कहा कि मैं आऊंगा, तुम्हें ढूंढूंगा और कत्ल करूंगा जब तक मेरे खून का आखिरी कतरा बाकी है। मैं आऊंगा और कत्ल करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब इंसान हैं, और जब शुरू में मैंने उसकी तस्वीर देखी तो वो बहुत ही दहशतनाक थी, और जब मैंने वो तहरीर पढ़ी तो वो भी दहशतनाक थी, और मैंने उसे जवाब नहीं दिया था। मैं घुटनों के बल हो गई और मैंने दुआ की। मैंने कहा, खुदावन तू किस तरह प्यार कर सकता है, तू किस तरह प्यार से इस तरह के लोगों को जवाब दे सकता है। मैं इस आदमी को क्या कहूं? कोई रास्ता नहीं है। मेरे अल्फाज इस आदमी को कायल कर सके, कोई रास्ता नहीं है। इस आदमी ने अपना जहन बना लिया है। तकरीबन इस नुक्ते पर कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोगों पर छाप लगा देते हैं जैसे नामुमकिन। ये आदमी नामुमकिन था। क्या आपकी जिंदगी में कोई नामुमकिन है? हो सकता है शायद कोई हो, आपका शौहर, आपका भाई, खानदान में से कोई, काली भेड़ खानदान में, और आप कहते हैं ये शख्स, उस शख्स के बारे में गौर करें। मैं कुछ को जानती हूँ, कुछ ज्यादा को नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये शख्स नामुमकिन है। हो सकता है शायद आपके जहन में कुछ इस तरह के लोग हों। आप सोचते हो कि जहन्नम ही उनकी मंजिल है। नहीं मेरे अजीजों, मैं आपको बताती हूँ, अगर खुदा मुझे बचा सकता है, अगर खुदा मुझे तब्दील कर सकता है, अगर आपने मुझे 15 साल पहले देखा होता, अगर आपने देखा होता कि मैं किस तरह बात करती, बोलती और बर्ताव करती थी, तो आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और फिर उस खत के बाद मैं दुआ कर रही हूँ, मेरे खुदावन मेहरबानी से मुझे कुछ बता के उस आदमी को बता सकूं। और यीशु ने मुझे उसके लिए जवाब दिया
और वो एक सही जवाब था, क्योंकि मैंने यीशु से पूछा। कभी कभार आप इस तरह की सूरत हाल में होते हैं और आप किसी मरहले से गुजर रहे होते हैं और आप महसूस करते हैं कि किसी को जवाब दें, और अक्सर औकात बदकिस्मती से हम अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं, अपने फहम पर, अपनी तालीम पर, और हम काबिले नजर आना चाहते हैं, हम कुछ अच्छा कहना चाहते हैं। लेकिन यीशु इस तरह नहीं था। उसके पास दिमाग था तमाम डॉक्टरों का, फलसफियों का, प्रोफेसरों का, दुनिया के साइंसदानों का। फिर भी उसने जिस तरह जवाब दिया जब उसे जिज किया जा रहा था या जिज नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसने उन्हें इजाजत दी कि वो उसे उभारे, उसने उन्हें इजाजत दी कि वो उससे सवालात करें, और उसके जवाबात हमेशा सही होते हैं जब आप उस पर इन्हिसार करते हैं। तो उसने मुझे जवाब दिया और मैंने उस आदमी को लिखा और मैंने कहा, अजीज जो भी हो, कि अपने खून के आखिरी कतरे तक, अपनी आखिरी सांस तक तुम मुझे ढूंढोगे और कत्ल करोगे। मैं जानती हूं कि तुम कहां से आ रहे हो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह थी, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि इस तरह मेरा खुदा मुझे बताता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। मेरा खुदा मुझे बताता है कि अगर वो भूखे हो तो उन्हें खाना खिलाओ, अगर वो प्यासे हो तो उन्हें पानी पिलाओ, अगर उन्हें कपड़ों की ज़रूरत हो तो कपड़े दो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। ये मेरा खुदा है, और मेरा खुदा मुझसे गैर मशरूत प्यार करता है। और तुम्हारी धमकियों के जवाब में मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे अपने खून के आखिरी कतरे तक प्यार करूंगी, अपनी आखिरी सांस तक मैं तुमसे प्यार करूंगी। और 2 हफ्तों की खामोशी के बाद उस आदमी ने मुझे जवाब दिया और उसने कहा, किस किस्म का खुदा मुझे इस तरह से जवाब दे सकता है? और उसने इब्तिदा में मुझे बहन कहा। बहन, किस किस्म का खुदा मुझे इस तरह बता सकता है, किस किस्म का खुदा बता सकता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो? तुम किस तरह से मसीही बनी, और मुझे बताओ कि किस तरह से मसीह की पैरोकार बनी। मुझे अपनी कहानी बताओ, मैं जानना चाहता हूं। उसने कोई खुदा हाफिज, कोई मेरी अजीजा, कुछ भी नहीं, सीधे सवालात किए, और मैंने उसे अपनी गवाही दी, और मैंने उसे अपनी गवाही लिखी। और फिर 2 हफ्तों की खामोशी के बाद उसने मुझे दोबारा लिखा और कहा, सुनो, तुम नहीं जानती कि मैं कितना बुरा आदमी हूं, मैं बेहद बुरा इंसान हूं, मैंने बहुत खौफनाक काम किए हैं। मैं नहीं समझता कि तुम्हारा खुदा मुझे कबूल करे या मुझे इजाजत दे। और मैंने उसे जवाब लिखा यीशु के गैर मशरूत प्यार के बारे में। और खतो किताबत के तसलसल के बाद एक दिन उसने मुझे लिखा और उसने कहा, जब से मैं तुम्हें लिखता रहा हूं और तुम्हारे जवाबात पढ़ता रहा हूं, मेरी जिंदगी में कुछ इत्मीनान नहीं था। आपने किया, आपके अल्फाज ने मेरे दिल में कुछ किया है, उसने कहा। और मैंने खुदा से पूछना शुरू कर दिया कि मुझे दिखा। और मुझे एहसास है, मुझे गहरा एहसास है कि अगर आप मेरे साथ दुआ करेंगी और अगर आप मेरे लिए दुआ करेंगी तो मैं सच्चाई जान लूंगा। और 1 महीने तक लिखने और दुआ करने के बाद एक दिन उसने कहा, मैं तैयार हूं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा ने वो पर्दा हटा दिया था। वो यीशु की तरफ मुतवज्जो था और उसे देख रहा था। वो उसे एक पैगंबर से बढ़कर देख रहा था, वो उसे एक दोस्त से बढ़कर देख रहा था, या किसी आदमी से बढ़कर, किसी शख्स से बढ़कर। वो यीशु मसीह को देख रहा था कि वो कौन है। आज आपको वो पर्दा हटाने की जरूरत है मेरे मुसलमान दोस्तों। खुदा से पूछें, खुदा, मैं नहीं जानता कि ये क्या बातें कर रही है, लेकिन मेरे पास उम्मीद की एक झलक है, बिल्कुल जैसे इसकी गवाही में थी, इसके पैगाम में थी। क्या अगर मैं सही हूं? क्या आप अब्दी तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाल सकते हैं? क्या आप अपनी नजात को खतरे में डाल सकते हैं? क्या आप हमेशा के लिए जहन्नुम की आग का खतरा मोल ले सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते।
یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اگر میں یہ سڑک لوں تو سیدھا پنسار کی دکان پر پہنچ جاؤں گا، یا اگر میں وہ سڑک لوں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا۔ یہ بہت ہی اہم فیصلہ ہے جو آپ اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں، بے حد اہم۔ آج میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ خدا سے کہیں کہ وہ خود کو آپ پر ظاہر کرے۔ میرے یہودی دوستوں، میں آپ سے بھی یہی کہوں گی، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، کیوں مسیح کا انکار کیا جائے؟ کیوں؟ آپ کتنے عرصے سے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا؟ کب تک؟ ہو سکتا ہے آپ یقین رکھتے ہو کہ وہ آیا تھا اور چلا گیا۔ یسوع کیوں نہیں؟ یسوع کیوں نہیں؟ وہ حلیم، بڑھئی، جو خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، کیونکہ نجات پہلے آپ کے پاس آئی، پھر غیر یہودیوں کے پاس۔ خدا آج آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کے قریب ہے، ایک دعا سے، ایک پکار سے۔ آپ اس سے کہیں کہ خود کو آپ پر ظاہر کرے، اور آپ اپنا دل بھی اسے دے سکتے ہیں۔ اور جب آپ اپنا دل اس کو دے دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے میرے ساتھ ہوا۔ گھاس ہری بھری نظر آنے لگتی ہے اور آسمان نیلا، اور وہ عورت جو قابل نفرت تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں گلیوں میں دوڑوں، ہر ایک کو چوموں اور گلے لگاؤں، اور انہیں یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں بتاؤں۔ آج خدا آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، خدا خود کو آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ کوئی بھید نہیں رہنا چاہتا، وہ کوئی راز نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اس طرح کا خدا نہیں ہے کہ خود اوپر رہے اور ہم نیچے۔ وہ آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے دل کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اپنا مقدس۔ پیارے خداوند، اس سے کہیں میں ایک گنہگار ہوں، یسوع میرے گناہوں کو معاف کر، اور آج میں تجھے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میری خاطر صلیب پر جان دی، میرے گناہوں کی خاطر، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو تیسرے دن جی اٹھا۔ یسوع مجھ میں آ اور میرے اندر بسیرا کر۔ آمین۔